Yeah, good afternoon students. Can you hear me and see me? मुझे देख सकते हो, सुन सकते हो? Great. So you are the new batch, right? Today is first day of your class. Today is first day of your class. तो कब से चालू हुआ आपका क्लास? When from when? 1st June. Okay, fine. And who has been taking your biology? अब तक कौन ले रहा था biology? Which teacher? Rajat sir. Okay, great. तो अभी से आई एंड रजत सर हम दोनों मिलके वी विल बी टेकिंग योर क्लासेस. ओके, राकेश सर ने भी लिए क्या? ओके, सो आई थिंक नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एंड रजत सर. ओके, नाउ माय नेम इज Dr. Sheel Sheth. To give you a small introduction about myself, I am a homeopath. That is why मेरा डॉक्टर का डिग्री है. And I have practiced homeopathy medicine, but my main field of interest was sports fitness consulting. So I practiced as a sports fitness consultant. तो मेरे clients या जो patients होते थे वो generally बीमार लोग नहीं होते थे, but they used to be people who wanted to be more fit. Since last 8 years I am teaching NEET also. Okay. I had my own academy जहाँ मैं fitness training courses करता था, और साथ ही साथ I used to teach first year MBBS homeopathy and physiotherapy students. Okay, now I graduated in 1991. मतलब maybe before you all were born. 1991 I graduated from Mumbai from the homeopathic college. And luckily हमारे वक्त क्या होता था that we used to have a lot of exposure of allopathy. तो homeopathy और allopathy हम साथ में सीखते थे. So that's how I used to get students from MBBS also. Okay, अब यहाँ पे हम नीट करने वाले हैं. So I will be teaching you zoology topics and रजत सर आपको botany सिखाएंगे. Now in NEET या जो 12वीं में 12th 11th and 12th का जो biology है, okay, actually you do not have a division between botany and zoology. Okay, एक ही बुक में botany and zoology के दोनों topics है. Okay, फिर भी we can divide the topics into 3 main groups. One is जो pure zoology के topics है, फिर एक जो प्योर बॉटनी के टॉपिक्स है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स आर कंबाइन मिक्सचर, मतलब उसमें बॉटनी जूलॉजी मिक्स होता है बिकॉज दे आर बेसिकली बायोलॉजी टॉपिक्स. फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स प्लांट्स का भी होता है एनिमल्स का भी होता है, तो जूलॉजी बॉटनी दोनों में आएगा. देन यू हैव बायोटेक्नोलॉजी. देन आपका फर्स्ट चैप्टर शायद जो सर ने स्टार्ट किया होगा, दैट इज लिविंग वर्ल्ड. Okay, so all organisms we are studying. Then biological classification, उसमें भी हम plants animals सब पढ़ेंगे. Okay, so I will be doing the zoology topics and some of the common topics, और रजत सर शायद आपके साथ बॉटनी करेंगे. ठीक है. Now generally just a minute. Generally when I will teach you तो मेरी notes होंगी. So you will be studying from my notes. जो नोट्स मैं यूज करके यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसी नोट्स वही नोट्स आपको मैं भेजूंगा अभी. Okay, so I'll just give you an example of the kind of notes that you are going to study. Just a minute.
जस्ट मिनट, मैं एक फाइल शेयर कर रहा हूँ, गिव मी अ मिनट. ओके, कैन यू सी दिस फाइल जिसमें टेबल्स है? Okay, you can see this file. There are tables of the animal kingdom. Okay, so इस तरह से you will get notes. मैं इसी notes में से पढ़ाऊंगा, and at the end of the lecture I will send you the notes. That is how we will do. Ajinkya Khade, sir, you are teaching for one batch. 11th में yes, one batch. Otherwise I am teaching the exam going batch, जो अभी 12वीं का जो आपके seniors है, 12वीं के seniors who are appearing for NEET. So I teach all the three exam going batches. Okay, but 11th में yes, I will be teaching maybe one batch. ठीक है? I may also teach you botany. Now that will depend on the availability of teachers. So मैं botany और zoology वैसे दोनों पढ़ाता हूँ. But maybe आपके साथ I may teach only zoology and common biology topics. ठीक है? Now you are new to this class, right? Practically new. आप थोड़ा बहुत अच्छा break से आए हो. All of you have been at home because of COVID. तो शायद आप लोगों ने 10th का एग्जाम भी नहीं दिया है, लेकिन प्रीलिम्स कितने लोगों ने दिया है? प्रीलिम्स तक कितने लोगों ने दिया है? कैन यू ऑल टेल मी? इफ यू हैव गिवन से यस, इफ यू हैव गिवन नॉट गिवन तो से नो इन योर रिप्लाई. ग्रेट. ठीक है, तो या बिकॉज इट इज नेसेसरी कि जब तक हम एक बार एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करते तो हमारा प्रिपरेशन या नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट अच्छा पक्का नहीं होता है. ओके, सो इनफैक्ट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो अब 11th में आए, उनके स्कूल में तो 9th की एग्जाम्स भी नहीं हुई थी. 9th में भी ऐसे ही प्रमोट कर दिया था. ओके, सो आई एम हैप्पी इफ अगर आप लोग ने एग्जाम करके 10th का सिलेबस पढ़ा है. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ ग्रुप फॉर आवर बैच. मतलब कौन सा? व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, so today after the class I will create a WhatsApp group and I want you to join that group because हम I will be sharing your notes on that group. Okay, दूसरा, we will be having discussions. आप questions पूछ सकते हो. We can have discussions on the chat also. ठीक है? Now for making the group I require two admins, one girl and one boy. तो who will be the admin जिसको WhatsApp का अच्छा knowledge है, कंप्यूटर और एंड मोबाइल का अच्छा knowledge है? Okay, so I want one girl and one boy. Payal, great. So Payal will be our one of our group admins. Boys में से कौन करेगा, लीड लेगा? गर्दाड़े, पायल. ओके, पायल, कैन यू स्पीक टू मी? आपकी आवाज मैं सुन सकता हूँ. यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ. लेट मी सी, मैंने अनम्यूट किया कि नहीं आप लोगों को? नो. ओके, सो हाउ अबाउट हैविंग अ लुक एट ऑल ऑफ यू? क्लास तो होती रहेगी. Okay, participants, let me see. Okay, so I want to check all of you and whether आप लोगों को पता है how to speak on the app and how to open your video. So I will try to go by name. Atharva. Yeah, okay. Payal, can you do that first? Payal, can you put on your video and chat and speak to me? सबको हाय बल बोलोगे? Are you there? How do I see?
Payal, can I speak to you? Are you there? Payal, are you there? I cannot hear you. Let me see chat में. Payal, do you know how to speak on the app? You अथर्व, you can speak. आपने hand raise किया है. Let me see, because मैंने already participants को unblock किया है. So whenever you want, you can speak. I just want to check whether मुझे आप लोगों की आवाज आ रही है. I cannot hear you. अथर्व, try to say something. अपने आप को unmute करो. Sir, mistakenly hand was raised. हाँ, okay. So is that अथर्व? Yes, sir. हाँ, okay. So now can you show yourself on the video? आपका वीडियो कैमरा ऑन है? I cannot see anybody. कैसे देखूं मैं? Participants. Okay, great. Fine. So अथर्व, will you take the lead for being the group admin? हम जो नया ग्रुप बनाएंगे उसमें. अथर्व, I want you to speak. And Payal, can you open your video camera and speak to everyone? Gardade Payal, are you there? Payal, are you there? Can you hear me? No reply. Payal, आपने बताया ना you want to become the group admin. So now you are not replying at all. Okay, somebody else. Adarsh, can you put on your video? Adarsh, Kiran, अपना video on करो. Let me see. Okay. Yes, Payal. Hi. Fine. So I cannot hear you. Payal, I cannot hear you. आपका you unmute yourself so that you can speak on the group. मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी. You can chat. Do you know how to unmute? तो मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी. Can anybody else hear Payal? Okay, doesn't matter. So Payal and Atharva, I will be making this group. Okay, हमारा नया group बनाएंगे WhatsApp, and then I will send you the link. So my number I am giving you right now. This is my WhatsApp number. Okay. तो आप मुझे ये नंबर पे आप दोनों का नाम और WhatsApp नंबर भेजो. Okay, Atharva and Payal, and then we will form this group. ठीक है? Okay, so when we will form this group, उसके बाद I need to know you all, है ना? तो मुझे पता चलना चाहिए आप लोग कहाँ से हो, कैसे हो. तो मैं कुछ चीजें आपके बारे में जानना चाहता हूँ. Okay, so I'm just writing the name. I'm writing the things which I want to know about you. One is your name, your birth date, that is BD, birth date. उसके बाद your board. बोर्ड मतलब आप कौन से 10th के बोर्ड से, HSC से हो या SSC ISC से हो. Okay, then the name of your school, then the medium of studies, मतलब आप इंग्लिश से हो, मराठी से हो या मिक्स्ड से हो. Okay, medium of studies.
Then I want to know your marks in ninth finals and 10th prelims. और मुझे कौन से मार्क्स चाहिए? आपके टोटल परसेंटेज प्लस इंग्लिश and PCB. Okay, so these are some of the things that I want. So मैं ये I will send you this list on the. So we should know, at least I should know all of you. Okay, इसके अलावा I want to know your hobbies. Your hobbies I want to know. Then I want to also know if you are engaged into any serious sports or extracurricular activities. मतलब स्पोर्ट्स डांस वगैरह कुछ में अगर आप हो तो. Okay, and last is your parents education. Parents education and profession. Even if your mother is a housewife, so please write that. Okay, so I do this with all my batches and it helps me to know all of you. And I would like कि आप लोग भी एक दूसरे को जानो. See, whenever, I mean, hopefully एक आध महीने में तो आप लोग सब कॉलेज में आओगे. So we will have an introduction and all of you must know each other. है ना? लेकिन even if we are not meeting each other personally, तो भी थोड़ा बहुत एक दूसरे के बारे में जानेंगे तो अच्छा होगा. Okay? So ये हम ग्रुप पे शेयर करेंगे. कुछ लोगों को अगर awkward लग रहा है या शर्म लगती है अपने बारे में बताने में, so you can send me on my personal group also, personal WhatsApp also. ठीक है? So that is how we are going to study. अभी आज हम इंट्रो जैसा कुछ करेंगे बिकॉज आई अंडरस्टैंड के मंडे से और भी बच्चे आने वाले आपके क्लास में. सो लेट अस डू अ लिटिल checking of your knowledge today. Okay, so I'm just going to one topic and I will check what you all know about it. ठीक है? Just 1 minute. हाँ, मैं फाइल निकाल रहा हूँ. Okay, now can you see the file? लिविंग वर्ल्ड का फाइल देख रहे हो आप? Okay, great. Now you understand that ऊपर you see some plant life and जो नीचे वाले फिगर में आप देख रहे हो you are seeing barren land, lifeless land. Okay, this is a imaginary drawing of the earth जब वो just before life began probably. और ऊपर आप देख रहे हो the living world, you are seeing plants and अगर plant life है तो फिर animal life भी होनी चाहिए. ठीक है? But before we go, what is the habitat? Okay, what is the habitat? Habitat मतलब ecological or environmental area that is inhabited by a particular species of animal, plant or other living organism. Okay, हर एक एनिमल आप देखोगे कि कुछ ना कोई जगह पे आपको मिलता है on the earth. You don't find all animals everywhere. Okay, जैसे human beings आप cities में ज़्यादा पाते हो. You will find sponges, porifera or cylindrata in the water. You will find birds on trees and yeah, so that is the habitat. Okay, so कहाँ आपको वो पर्टिकुलर एनिमल का स्पीशीज मिलेगा.
However, what do you mean by a species of animal? Species मतलब क्या? What do you mean by species? Can somebody tell me? What is the meaning of species? I want you all to answer. आप चैट में कर सकते हो या आप बोल के भी आंसर कर सकते हो. What is a species? Try to answer. You can type your answer also. What do you mean by a species of organisms? कोशिश करो. Lowest taxonomic character, प्रजाति. Great, Anish. प्रजाति, not exactly. Lowest taxonomic character, no. Basic unit of classification, okay, you good. But फिर भी अगर उसको define करना है, okay, so first, species is a group of organisms with similar characteristics, okay. क्या है? Organisms with similar characters, okay. Organisms with similar, एक जैसे, and animals, एक जैसे plants, they belong to one species with the same in character. Very good. So Atharva, yeah. So that is one way of understanding a species. और species के बारे में क्या जानते हो? What do you mean by a species? और species के बारे में बताओ. When can you say all the same and that can breed together? Very good. So the second point is a group of similar animals who can interbreed. Interbreed means what? They can copulate, they can have intercourse, or they can participate in reproduction and bring about the rise of progeny. बच्चों को जन्म दे सकते हैं. Okay, so one, they have to be similar in characteristics. Second, they should be able to interbreed. अब ये सब करने के लिए इंटरनली उन्होंने कुछ कॉमन होना चाहिए. इंटरनली एट अ वेरी बेसिक लेवल कुछ कॉमन होना चाहिए, तब वो एक जैसे दिखेंगे, तब वो एक साथ में मिलके रिप्रोड्यूस कर पाएंगे. व्हाट इज दैट कॉमन थिंग जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स में होती है, बिकॉज ऑफ विच वो एक जैसे दिखते हैं और बिकॉज ऑफ विच वो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं? व्हाट इज दैट? ऐसा क्या होता है ऑर्गेनिजम्स में जिसकी वजह से वो सब एक जैसे दिखते हैं? दिस इज सिंपल, यू मस्ट आंसर फास्ट. कोशिश करो. We all are human beings and we look like each other, although हम में कुछ differences है, but we all look like each other. Why do we all look like each other? हम लोग humans दिखते हैं ना, हम में नाक कान आँख है, एक जैसे हाथ एक जैसे पैर है. Why do we all have similarities? Why are we similar? Genes. Okay, so very important. We have the same DNA and the same genes. Okay, what is the role of genes? Genes क्या करते हैं so that हम एक जैसे दिखे? What do genes do so that we look similar? जीन्स ऐसा क्या करते हैं कि हम सब एक जैसे दिखते हैं और हम एक जैसा एक ह्यूमन स्पीशीज बनाते हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ द जीन्स? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स तो बाद में होगा जब हमारे बच्चे पैदा होंगे, लेकिन आई एम लाइक यू, दैट इज बिकॉज ऑफ माई जीन्स. तो मेरे में जीन्स ऐसा क्या करते हैं? कैरेक्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन. ओके, यस, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन, बट दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स, है ना. आज अगर मेरा नाक इस तरह का है जो आम इंसानों की तरह है, that is because my genes
are responsible for the development of the nose. मेरा नाक बंदर जैसा नहीं है या मेरा नाक कुत्ते जैसा नहीं है, सो मेरा नाक ऐसे क्यों बना? जीन्स ने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा नाक ऐसा बन गया? What do the genes do? I'll give you a hint. The word is starting from P. So genes are responsible for making P. What is P? Proteins. Okay. So हम हमारा डीएनए होता है जो हर एक इंसान में एक जैसा होता है. So we all have the similar DNA, and on the DNA we have similar genes, and the genes express themselves in the form of proteins, and the proteins are responsible for our characters. Okay. अब when we talk about genes and expression, हम दो important words use करते हैं. One is the genotype. Genotype means the internal structure of our genes, the making of our genes. Okay, DNA is made up of nucleotides. आपने सुना होगा. And genes are a part of DNA. तो genes भी बने होते हैं nucleotides से. Okay, जैसे polysaccharides are made up of small units like glucose units. So वैसे DNA is made up of nucleotides and genes are also made up of nucleotides. और हमारे genes में जो nucleotide का sequence होता है, according to that our genes will make amino acids और amino acids मिलके proteins बनाएंगे. And proteins are the main functional and structural units of our body. Okay, proteins are क्या है? They are the main structural and functional units of our body. Okay, so जो भी हम है वो है because of proteins. Okay, we have two other important nutrition sources like carbohydrates and fats. Okay, now carbohydrates and fats are not involved with the making of the structure. Mainly उनका काम है energy provide करना. Although some fats and some carbohydrates are involved along with proteins, जैसे आप glycoproteins भी देख सकते हो और lipoproteins भी देखते हो. So they may also be involved in structure. लेकिन primarily proteins are involved with the structure and function of our body. Okay, तो अंदर जो हमारा जीन सीक्वेंस होता है या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, दैट इज कॉल्ड द जीनोटाइप. एंड जो बाहर एक्सप्रेस होता है, व्हाट वी सी इज कॉल्ड द फिनोटाइप. अगर मैं इंसान जैसा दिख रहा हूं, इज बिकॉज द फिनोटिपिकल एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स मेक्स मी लुक लाइक अ ह्यूमन बीइंग. ओके, सो जो हम बाहर देखते हैं दैट इज कॉल्ड द फिनोटाइप, और जो अंदर स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड द जीनोटाइप. ओके, सो group of animal, मतलब a species is a group of organisms which are morphological similar, मतलब बाहर से similar है, have similar anatomy and physiology, मतलब अंदर से भी similar है. They are able to interbreed and produce progeny which are fertile, which are fertile. Okay, and this happens because they have the same genotype and the same phenotype. Okay, so this group of animals is called a species. Okay, अब दुनिया में there are millions of species, there are millions of species. Okay, and in any part of the world आप देखोगे, चाहे आप शहर में देखो या जंगल में देखो या in the sea देखो या in the river देखो, generally you will find that more than one species inhabit that region, whichever part of the world. कोई भी जगह पे आपको अकेली एक species नहीं मिलेगी. So usually you have a group of species. So when different species are found in one region, those different species together उसको क्या बोलते हैं? When you find different species in one region, तो that different species को together हम क्या नाम देंगे? Genus, no. Genus
is used for classification, है ना, कि many different species जो एक जैसे है उसको हम एक बड़े ग्रुप का नाम देंगे जीनस, और वो क्लासिफिकेशन के लिए है। आपने टेक्सोनॉमी में शायद पढ़ा होगा। ओके, अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, ज्योग्राफी के हिसाब से पूछ रहा हूँ कि देर आर सम स्पीशीज, जैसे शहर में देख लो, यहाँ इंसान भी है, साथ में कुछ कुत्ते भी रहते हैं, आप देखोगे तो चूहे भी रहते हैं शहर में, and there are different kind of birds, there are different bacteria, all of them are living together in this region which I call, अभी मैं पुणे में हूँ तो I call it Pune. It is a part of the world. Biosphere is a geographical description. Okay, और एक ecosystem भी नहीं, I'm talking of a habitat is also the place, I'm talking about that group of organisms. Okay, और मैं आपको हिंट देता हूँ, एक जोग्राफिकल एरिया में जब एक स्पीशीज होती है, ओके, इन वन जोग्राफिकल एरिया, देन वी से इट इज अ पॉपुलेशन ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, है ना। अब ह्यूमन बींग्स यहाँ पर भी है, पुणे में भी है, और ह्यूमन बींग्स बारामती में भी है, नो, एंड ह्यूमन बींग्स यूएसए में भी है, वी ऑल आर द सेम स्पीशीज, ओके। लेकिन जो पुणे में ह्यूमन बींग्स है उसके ऑफ कोर्स कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सबसे मिलेंगे अदर ह्यूमन बीइंग से, बट कुछ खासियत भी है ना। जैसे पुणेइट्स विल बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द पीपल फ्रॉम बारामती, एंड वी बोथ मे हैव लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज, सो वी आर ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन सेम ह्यूमन बीइंग्स आपको यूएसए में भी मिलेंगे, पर उसमें भी कुछ अलग अलग चीजें हैं। ओके, सो इन पुणे वी ह्यूमन बीइंग्स फॉर्म अ पॉपुलेशन, मतलब एक जोग्राफिकल एरिया में जब एक स्पीशीज आती है तो उसको एक पॉपुलेशन बोलता है, एंड द पॉपुलेशन of that species in Pune is slightly different from the population of species or human beings in Baramati, and they are slightly different from the human beings in USA. So we are the same species but we have different populations. Okay, तो जब आप species को एक geographical area के हिसाब से define करोगे तो हम उसको population बोलते हैं, and in Pune or in any geographical area there are many populations, so that different populations or different species in one area is called a community. So it is called a community. So in Pune or in a forest or in a river or in a pond, you will have different species which will cohabit. Cohabit मतलब एक साथ रहेंगे. When you have different species cohabiting, we say we have a community of organisms. Okay. Now tell me, क्या कोई भी जगह पे सिर्फ एक स्पीशीज रह सकता है, और अगर रहेगा तो जिंदा रह सकता है, या you require more than one species to survive? Is one species enough to survive in one location? या कभी कहीं पर भी कोई भी जोग्राफिकल एरिया में is one species enough? क्या हम इंसान सिर्फ अकेले होते तो क्या हम जिंदा रहते? Okay? Not at all. More than one species, in fact multiple species are required. Okay, and when there are multiple species in a geographic area, okay, that is called the biologic diversity of that region or the biodiversity. ये आपने word सुना होगा. Okay, so in order to survive there has to be biodiversity, because in a geographical region, okay, different communities or different populations or different species will perform different roles, and बायोलॉजी को सस्टेन करने के लिए या स्पीशीज को सस्टेन करने के लिए वी रिक्वायर इंटरडिपेंडेंस ऑन डिफरेंट स्पीशीज. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा खाना आता है फ्रॉम स्पीशीज ऑफ प्लांट्स. इफ यू आर वेजिटेरियन, अगर प्लांट्स नहीं है, द प्लांट्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड एक ऑर्गेनिज्म नहीं, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स.
So our food comes from them. Now if we are non-vegetarian, then we require species of other animals. Not only that, okay, do you require bacteria for survival? क्या हमको बैक्टीरिया चाहिए सर्वाइवल के लिए? अगर हमारे वर्ल्ड में बैक्टीरिया नहीं है तो क्या होगा? Will we survive? Can this world survive without bacteria? So now give me one example where you can say for sure कि अगर बैक्टीरिया नहीं होते तो ये वर्ल्ड ही नष्ट हो जाएगा, रहेगा ही नहीं, हम भी मर जाएंगे. Give me one example to prove that bacteria are so important. Can somebody give an example to say कि अगर बैक्टीरिया नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे. In fact, gradually the whole world will bacteria very good decompose dead and decaying matter, है ना? So हम बोलते हैं that saprophytes मतलब fungi are saprophytes, but the largest decomposers are the bacteria. अब हम तो जिंदगी की बात करें ना, जीने की बात करें, तो हम डिकम्पोजिशन पे कहाँ आ गए? why is decomposition so important? हम तो जिंदा रहने की और जीने की बात कर रहे हैं ना. So why are you talking of decomposition? You're right, but what is that important role of decomposition in our life? अगर डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो क्या होगा? Why is decomposition so important? Why is decomposition so important? बोलो. Akshata converts nitrogen for plants. No, that is not decomposition. That is in fact anabolism. वो तो हवा में से नाइट्रोजन लेता है and it converts it into proteins. That is not decomposition. अच्छा, decompose dead and decaying matter. Okay, so we are talking of decomposing dead and decaying matter. So first we all know fertility of soil. Okay, decomposition से fertility of soil मिलेगी because dead and decaying organisms. चाहे हम इंसान हो तो भी हम जमीन में गाड़े जाते हैं, या हमको जलाए तो भी हमारी ऐश जमीन में जाती है. So finally everything goes back to the soil. And कुछ चीजें अगर ऑर्गेनिक मैटर रह गई है और अगर उसको डिकम्पोज करे, देन उसमें से न्यूट्रिएंट्स हमको मिलेंगे, एंड दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. विदाउट डिकम्पोजिशन देयर विल बी नो साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना? एंड हर एक ऑर्गेनिज्म की एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होती है, उसके बाद वो मरने वाला है. अगर मरने वाला है तो उसकी बॉडी is going to be of no use to the whole ecosystem or the environment. फिर भी उसकी बॉडी में जो चीजें है, न्यूट्रिएंट्स है, वो they have to be used by other organisms. अगर हर ऑर्गेनिज्म मर के अपने न्यूट्रिएंट्स, अपने खुद के प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह लेके चला गया कहीं, तो फिर ऑन द अर्थ देयर विल बी अ सीवियर स्कैरसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. नए इंसान, नए ऑर्गेनिजम्स पैदा ही हो नहीं पाएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डिकम्पोज करें. तो बैक्टीरिया के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. Okay, so every organism on the earth has a role to play. Okay, and without some species, one species cannot survive around without the other. Okay, so very, very important. Now, ecosystem. Okay, an ecosystem is a community of living organisms plus the non-living components. So कोई भी जगह पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, लेकिन you also require
non-living components in the environment. And what are those non-living components? They are air, water और soil. Air, water and soil. Okay. इसके अलावा क्या है air, water and soil? What other important components, non-living components of our environment है? Other than water, minerals and soil, which are the other non-living components of our environment जो बहुत ही important है for life? Oxygen is part of air, वो तो already आ चुका है. It is already mentioned, included in air. So fire. और कुछ बताओ निखिल. फायर नहीं, और tell something related. Solar what? सन. सन के बिना भी जिंदगी तो चल सकती है. हम सोचते हैं ना एलियन. लाइट. सो यू हैव लाइट. लाइट के बिना क्या नहीं होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर. Every organism requires a certain temperature to survive. और temperature का मतलब है heat in some form or the other. We believe that most of the heat on our earth comes from the light of the sun, solar energy, है ना? But there are some organisms जो बहुत ही deep in the water रहते हैं, deep oceans, and वहां पे light पहुंचती भी नहीं है, and still they survive. There are some bacteria, protists, even some small fish वगैरह, they can survive at absolutely cold temperatures. minus में होता है, and there is no light there. So how do these bacteria and organisms survive there? How do they survive? है ना? यहाँ हम देखते हैं सनलाइट है, हवा है, पानी है, सब कुछ है. But अगर you want to survive, some bacteria wants to survive down inside the water at extremely cold temperatures. Chemosynthesis. Excellent, Akshata. Very nice. So there are some bacteria, especially the archaebacteria, the original or the most ancient bacteria. They can convert certain chemicals and bring about reactions which will produce energy by chemosynthesis. Okay, very good. So light is definitely the main source of energy on earth, but जो other chemicals है, they can also provide energy. Very good. Okay, so अब ecosystem के बारे में कुछ सोचते हैं. An ecosystem is a community of living organisms with the surrounding non-living parts or components of the environment which are interacting as a system. तो कोई भी सिस्टम में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी नहीं रह सकते unless you have all these abiotic or non-living components. Okay, and now these biotic and abiotic components are linked together through interactions like nutrient cycles and energy flows. Nutrient cycle, जैसे आपने बताया decomposition से minerals release होंगे. Minerals will be picked up by the roots of the plants, and plants will make food with the help of light energy, and that food will be taken by herbivorous animals. So there will be nutrient cycling. जब nutrients cycle होंगे, साथ में energy भी जाएगी from when one animal eats another organism, then another organism. So there is a constant nutrial cycling and energy flow which maintains the ecosystems. Okay, now in this, the most primitive animals are the most important. जैसे हमने बताया कि बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो इंसान मर जाएंगे, लेकिन क्या इंसान मरेंगे तो बैक्टीरिया जिंदा रहेंगे? Are human beings as important as bacteria for life on earth?
अगर इंसान नहीं रहेंगे तो क्या बैक्टीरिया जिंदा रहेंगे? वेट, माय क्वेश्चन इज, क्या बैक्टीरिया जिंदा रहेंगे? सो टेल मी, नो बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहेंगे, और यस बैक्टीरिया जिंदा रहेंगे। नो, ओके। नाउ मृणाली संदीप, आपने लिखा है नो, मतलब यू आर ट्राइंग टू से कि अगर इंसान सब मर गए, या समझो इंसान नहीं है, तो बैक्टीरिया नहीं रहेंगे। ओके, एक्सप्लेन व्हाई। हम ऐसा क्या खास करते हैं बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए? हमने जैसे देखा कि बैक्टीरिया हमारे लिए डिकम्पोजिशन करते हैं, सो दे मेक lot of nutrients available by energy cycling, so they are so important. उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, है ना? हम लेबोरेटरी में थोड़ा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कितना करेंगे? So we cannot survive without bacteria. So like that, can bacteria survive without us? Okay, the answer is a big yes, absolutely yes. In fact, जब बैक्टीरिया पैदा हुए, कि the earth is around 4.5 billion years old, 4.5 billion years, so 4,500 lakh years old, and the first organisms to develop were bacteria. Okay, archibacteria. जब बैक्टीरिया थे तब अपने आप पैदा हुए, अपने आप रिप्रोड्यूस किए, अपने आप सब कुछ कर लिए, and that time there were no human beings. Forget human beings, there were no animals, there were no plants. फिर भी बैक्टीरिया अपने आप में self sufficient थे. They could maintain and sustain their life, they could reproduce on their own. They don't require other organisms. So जितने primitive animals या primitive organisms होते हैं, उतने वो self sufficient होते हैं. Okay, so bacteria, and in fact all organisms on earth will live better if human beings are not there. Agree? अगर इंसान नहीं है तो बाकी सब organisms, चाहे वो plant हो, fungi हो, या कुछ भी हो, they will all be very happy if human being is not there. Okay, why so? Because we are destroying the environment. हम हमारे selfish needs के लिए और बढ़ती आबादी या बढ़ती population को support करने के लिए इतनी गलत चीजें कर रहे हैं, which are not environment friendly. Okay, so because of that we are destroying the nature, and we are destroying so many organisms from nature, and we are totally disturbing the balance in the ecosystem. Okay, जैसे शुरुआत हमने देखा था कि in order to survive, multiple communities, different species of organisms are required to interact with each other, तभी वो एक दूसरे के साथ मिलके जिंदा रह सकते हैं. लेकिन इंसान ही क्या है, हम ही ज्यादा अपने आप को होशियार समझते हैं, and we think that we can do whatever we want to this earth, and that is going to lead to our doom. आखिर में इंसान की वजह से ही इंसान मरने वाला है. I hope all of you will agree. Okay, so this kind of things are very important in biology. हम जब biology सीखेंगे तो we cannot study one organism independently. We always have to study that organism's interaction with one other organisms, and also interaction with other abiotic factors. ठीक है? Then we are going to go to what my specialty is, that is animal kingdom. तो फिलहाल हम ब्रेक लेंगे. अभी 3:55 हुआ है. Okay, we'll take a 5-minute break, and we all will meet at 4 o'clock sharp. So I don't want you to leave the group. आप मीटिंग में रहोगे, लेकिन you can take a proper break and meet at sharp 4 o'clock. Okay, till then, bye bye.
Okay, can you see स्लाइड दिख रहा है? ओके, नाउ ये सब जो ये वाला चैप्टर है एक्चुअली रजत गर सर इज गोइंग टू टीच यू, तो मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, बट इसमें आई विल सी इफ देयर आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट आई वांट यू टू ऑर्गेनिज्म. ओके, नाउअडेज यू नो हम कोरोना पेंडेमिक में है. So corona is a virus, right? So is corona an organism? Is corona an organism? Is corona मतलब are viruses organisms? क्या हम वायरस को ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं? Okay. Tell me, क्या वायरस जब हवा में घूम रहा है तब वो जिंदा होता है या मुर्दा होता है? इज इट अलाइव और डेड? जब वो हवा में घूम रहा है तो डेड. वेरी गुड. बट व्हेन इट इज इन आवर बॉडी, is it alive? When it is in our body, is it alive? Alive. अच्छा, alive मतलब ऐसी क्या चीज करता है कि आप बोल सकते हो कि वो alive है? What does the virus do so that you can say that it is alive? ऐसा क्या खास करता है जो बाहर नहीं कर पाता है लेकिन हमारे बॉडी में घुसने के बाद रिप्रोड्यूस और मल्टीप्लाई? वेरी गुड. इसके अलावा और कुछ करता है? Does it do anything else? Practically no. Okay, so we say that viruses are not true organisms because organisms, by definition, organisms must have a cellular structure. हम उन्हीं को, हम ऐसी एंटिटीज को, ऐसी चीजों को सेल या सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं इफ देयर इज अ प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर. अब वो सेल स्ट्रक्चर में बचाए और कुछ ना हो लेकिन वो सेल मेम्ब्रेन होने चाहिए, इसके अलावा डीएनए होना चाहिए, एंड डीएनए होने की वजह से इट शुड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, इट शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस. तो ऐसी चीजों को हम सिर्फ ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. तो वायरस में सेल मेम्ब्रेन होता है. डज अ वायरस हैव सेल मेम्ब्रेन्स? कोरोना देखा ना आपने सबने, तो क्या उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है? डू दे हैव मेम्ब्रेन्स? बोलो, डज कोरोना हैव अ मेम्ब्रेन? अगर मेम्ब्रेन है तो हम उसको सेल बोलेंगे, बट इट डज नॉट हैव मेम्ब्रेन, बट इट हैज गॉट सर्टेन प्रोटीन्स. हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है इट इज मेड अप ऑफ लिपिड, अ डबल लेयर ऑफ लिपिड्स. तो जो टिपिकल स्ट्रक्चर होता है, स्टेबल स्ट्रक्चर जो सेल को मेंटेन करता है, दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन, एंड वो ही वायरसेस में नहीं होता है. वन. सेकेंड, अनलेस दे गेट इनटू आवर सेल्स, हमारे सेल्स में घुसने के बाद ही वो उसका डीएनए हमारे डीएनए के साथ कंबाइन करके it makes our cell produce copies of the virus. ओके, तो हमारे सेल की मशीनरी को इस्तेमाल करके, हमारी सेल की रिप्रोडक्टिव मशीनरी इंक्लूडिंग अवर डीएनए, इंक्लूडिंग अवर राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाते हैं, सो इट फूल्स अवर बॉडी टू बिलीव के अब उसको अलग टाइप का प्रोटीन बनाना है, एंड दैट इज द वायरसेस. तो द सेल्स विल प्रोड्यूस द वायरस. खुद वो रेप्लिकेट करता है एट द with the help of the mechanism or the factories in the cells. Okay, so that is one. So viruses are not organisms, okay, except when they are inside our body. So they are said to be on the threshold of life, मतलब on the borderline of life. ना ही डेड बोल सकते, ना ही उसको लिविंग बोल सकते. ठीक है, अब ये मुझे बताओ, सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे कौन से आए? सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स कौन से आए अर्थ पे? Which organisms
inhabited the earth first? बोलो. Which organisms? Amoeba. Bacteria. Bacteria, yes. Which bacteria? Which bacteria? You know there are two types of bacteria. Yes. So the archaebacteria, the primitive bacteria, wo aaye. Now they could stay in the hostile condition. They could survive in the hostile conditions on primitive Earth. जब Earth बना था तब उसका टेम्परेचर तो ऑलमोस्ट सन जितना था, फिर धीरे धीरे कूल हुआ. जब कूल हुआ और अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री जितना कूल हो गया, तब कुछ कुछ जगहों पे at that time at some locations more बाद में there were some locations जहाँ पे इस तरह के chemicals थे that the chemicals assembled and could convert into organisms like bacteria. ठीक है. जब बैक्टीरिया आए तो वायरसेस ऑलरेडी थे या बाद में आए? Who came first? आर्कीबैक्टीरिया और वायरसेस? Who came first? वायरसेस और आर्कीबैक्टीरिया? बोलो. आप डॉक्टर और साइंटिस्ट बनने जा रहे हो. आर्कीबैक्टीरिया. अच्छा, टेल मी व्हाट आर मोर सिंपलर, वायरस का स्ट्रक्चर और फंक्शन सिंपल है या आर्कीबैक्टीरिया का सिंपल है? ज्यादा सिंपल कौन लगता है? Which is more complex and which is more simple? So tell me, सिंपल कौन है, वायरस या बैक्टीरिया? Yeah, so it is the virus. Okay, in fact वायरस इतना सिंपल है कि वो जिंदा भी नहीं रह पाता है अपने आप. उसमें there is a combination of certain proteins, maybe certain RNA or DNA, and that is all. उसमें ना ही ग्लूकोज भरा होता है, ना ही लिपिड्स होते हैं, ना ही और कुछ होता है. बस कुछ प्रोटीन्स और आरएनए और प्रोटीन्स एंड डीएनए. So it is the simplest form, and in fact viruses evolved much earlier than archaebacteria. So ये अर्थ ओरिजिनली वायरसेस का ही है. तो सबसे पहले जो जीव तो नहीं बोल सकते, बिकॉज वी बाय डेफिनेशन हम वायरस को लाइफ नहीं बोलते. इन पहले पार्टिकल्स जिसमें देयर वाज सम कैपेसिटी ऑफ रेप्लिकेशन, जिसमें कुछ डीएनए था, कुछ प्रोटीन था, दैट वाज द वायरसेस. ठीक है. उसके बाद वन वन स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटोसेल. प्रोटोसेल मतलब क्या? प्रोटोसेल that came before actual organisms came. So वायरस और आर्कीबैक्टीरिया के बीच में कुछ प्रिमिटिव या प्रोटोसेल्स थे. ओके. एंड इनके जो सेल मेम्ब्रेन्स थे वो सिंगल लेयर्ड थे. हमारे जैसे डबल लेयर से सेल मेम्ब्रेन होते, उनके सिंगल लेयर थे. उनमें डीएनए नहीं था, आरएनए था. एंड आरएनए इज वेरी अनस्टेबल. तो डीएनए क्या है, एक बार जैसे बैक्टीरिया में आ गया तो उसके बाद ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स तक कभी भी डीएनए इज अ स्टेबल न्यूक्लियर मटेरियल. लेकिन आरएनए बहुत अनस्टेबल होता है. तो शुरुआत में आरएनए बना था, एंड द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ दोस प्रिमिटिव सेल्स और precursors of cells, they were single layer lipid membranes. तो ये टिक नहीं पाते थे, बनते थे और टूट जाते थे, बनते थे टूट जाते थे, रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाते थे. अगर करते तो टेम्पररी करते, वापस बिखर जाते. ओके. सो दैट टाइम जब सेल्स बने नहीं थे, वायरसेस बने थे, सेल्स नहीं बने थे, लेकिन प्रोटो सेल्स या प्रो सेल्स बने थे. दैट पीरियड वाज कॉल्ड द आरएनए वर्ल्ड. एंड बिकॉज दैट टाइम डीएनए नहीं बना था, सो लाइफ वाज वेरी अनस्टेबल. लाइफ को स्टेबल बनाने का श्रेय या द रीजन व्हाई लाइफ इज स्टेबल टुडे
कि ऑर्गेनिजम्स बनते हैं और जिंदा रह सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस कर सकते हैं, उसके लिए बहुत स्टेबिलिटी चाहिए. दैट हैज ऑल कम बिकॉज ऑफ डीएनए. Okay, so the first organisms to inhabit Earth are the cells or the unicellular organisms, that is archaebacteria. And those organisms had two main things. One, they had this DNA as the nuclear material, and second, they had this bi-layer or a double layer of lipid membranes. ये दो मिनिमम चीजें जरूरी थी to form a stable cellular structure. And from there, that time onwards, we say कि life started. Okay, so that was about life. Now, अगले time, today we call it a day. Okay, so अभी क्या करेंगे, हम ब्रेक लेंगे and we will end the session. Okay, for हाँ, okay. चलो बुक्स के बारे में बात करते हैं. For NEET we can read old NCERT book or we should buy new one. I want to ask, syllabus change होता है क्या? नहीं, syllabus change नहीं होगा. One, लेकिन 2023 में 2023 में नई बुक्स आने वाली है. So there may be a change. However, new NCERT books have come. तो आप ओल्ड मत लेना, क्योंकि उसमें एडिटिंग हुआ होगा, करेक्शंस हुए होंगे नई बुक में. बिकॉज 3-4 साल से बहुत धमाल हो रहा है अपने एजुकेशन वर्ल्ड में, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स में बहुत मिस्टेक्स है. ऑल्दो इट इज अ वेरी गुड टेक्स्ट बुक, बट उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स है. क्योंकि जो हम लास्ट ईयर तक एनसीईआरटी यूज करते थे वो 2006 का 2006 का एडिशन है. उसके बाद वो एडिट हुआ ही नहीं है. तो लास्ट 3-4 साल से आखिर में उनके दिमाग खुले हैं एंड दे आर ट्राइंग टू मेक करेक्शंस. सो पहली बात, यू हैव टू टेक अ न्यू एनसीईआरटी. ठीक है. इसके अलावा आपको और क्या लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा आपका टैब, है ना, जो आपको कॉलेज में से बाई करना है एकेडमी में से. क्योंकि टैब में एनसीईआरटी भी मिलेगा, टैब में आपको एलन्स इंस्टीट्यूट के नोट्स भी मिलेंगे, आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे. फिर आप जो वीकली टेस्ट होंगे वो भी आपको टैब पे करने हैं. फिर ये जो लेक्चर्स मैं दे रहा हूँ या और टीचर्स दे रहे हैं वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रहे हैं, एंड दोस विल बी अवेलेबल ऑन द टैब फॉर फ्यूचर रेफरेंस. आपको कभी भी 2 साल के बाद भी आपको समझो आज का लेक्चर देखना है, सुनना है, तो आप उसको you can see it on the tab. So the second most important thing is the tab. टैब के बिना आपकी जिंदगी चैतन्य एकेडमी में अधूरी हो जाएगी, आधा ही फायदा उठा पाओगे. We are waste of your 2 years if you do not have the tab. Okay. इसके अलावा for my subject there will be my notes. मैं हर एक टॉपिक की, हर एक चैप्टर की आपको पूरी नोट्स दूंगा. When I make my notes, they are made primarily from NCERT. एनसीईआरटी अपना मेन सिलेबस है तो उसमें से होता है, लेकिन एनसीईआरटी थोड़ी इनकम्प्लीट टेक्स्ट है. कुछ चीजें बताई है लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया, या कुछ चीजें ऐसे बताया कि वो दूसरे चैप्टर में मिलेगा आपको, और मिलता है लेकिन 11वीं में लिखा है कि आप ये इसका बाकी का इन्फॉर्मेशन आपको 12वीं के चैप्टर में मिलता है. और कभी कभी तो लिखते भी नहीं है, लेकिन बिकॉज वी आर टीचर्स एंड हमारे डिस्कशंस होते हैं एंड वी नो एंड वी हैव टॉट फॉर सो मेनी इयर्स, हमको पता है कि भाई ये मटेरियल इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो ये वाले चैप्टर में मिलता है. सो दैट इज अ प्रॉब्लम विद एनसीईआरटी कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमेशा एक ही जगह से मिल जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है. ओके, सो यू विल हैव टू रिफर टू द नोट्स. ओके, सो मेरी जो नोट्स होती है उसमें एनसीईआरटी का हर एक वर्ड मिल जाएगा. इन एडिशन आई टीच इन श्री चैतन्य, आपको मालूम है हैदराबाद साउथ का इंस्टीट्यूट है, सो पूना में उसका ब्रांच है. सो आई टीच ओवर देयर आल्सो. So I have access to books from Sri Chaitanya. That is the number 3 institute today in India. Okay. फिर मैं पहले आकाश में पढ़ा चुका हूँ, तो मेरे पास आकाश की भी बुक्स है और आकाश का भी सॉफ्ट मटेरियल है. एंड एलन्स का अब तक काफ़ी स्टैंडर्ड माना जाता है, सो वो भी मेरे पास मटेरियल है. सो व्हेन आई मेक माय नोट्स आई मेक फ्रॉम ऑल दीज 4 मटेरियल्स. एलन्स, I mean, first is NCERT, second is Islands, third is Akash, and fourth is Sri Chaitanya. However,
लास्ट 5 ईयर से, मतलब 1915 से, अरे 2015 से हाई कोर्ट ऑर्डर आया है दैट नथिंग शुड बी आस्क्ड फ्रॉम आउटसाइड एनसीईआरटी. ओके, आउटसाइड एनसीईआरटी. सो आपके जो पेपर्स बनेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे. लेकिन एनसीईआरटी का खुद आप प्रीएम्बल देखोगे, शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन होता है ना, उसमें खुद लिखा है कि ये बुक इनकम्प्लीट है. खुद वो लोग ने माना है कि ये बुक इनकम्प्लीट है एंड आपको बाहर से रेफरेंस करने पड़ेंगे, है ना. सो स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि बाहर का पढ़ना चाहिए या नहीं. सो इन वन वर्ड, यू डू नॉट हैव टू नो मोर इन्फॉर्मेशन मोर देन एनसीईआरटी. हाउएवर एनसीईआरटी में जो कुछ चीजें इनकम्प्लीट है या सिर्फ बता के छोड़ दी है, उसके एक्सप्लेनेशंस आपको बाहर से करने पड़ेंगे. तो इस तरह की जो थोड़ी बहुत फिल इन द ब्लैंक्स है या जो इनकम्प्लीट चीजें हैं, दैट यू विल फाइंड इन द नोट्स. ओके, सो नोट्स पढ़ोगे तो आपको और कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा. दूसरा, जो नोट्स मैं बनाता हूँ वो इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स. तो जो नोट्स की लैंग्वेज होती है वो एक तो एनसीईआरटी की होगी या तो इस तरह की होगी कि उसमें से आपको क्वेश्चंस को आंसर करने में आसान होगा. So that is what I'll do in the notes. दूसरा, there will be a lot of figures in my notes. So when you have figures and graphics, तो समझ आसान हो जाता है, याद करना आसान हो जाता है. Okay? So NCERT बुक ऐसी है कि उसमें से याद करना बहुत मुश्किल है. इट इज ऐसे टाइप में आपकी टेक्स्ट, आपके नीट में एमसीक्यूज आते हैं, टोटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. नॉट ओनली दैट, आप अगर बोर्ड आप लकी और अगर आपकी बोर्ड एग्जाम होगी तो उसमें भी 70% अभी ऑब्जेक्टिव ही आता है ना. लेकिन एनसीईआरटी इज अ सब्जेक्टिव टेक्स्ट, तो पढ़ने में अच्छा लगता है. लेकिन एक तो वो इनकम्प्लीट है क्योंकि इंफॉर्मेशन अलग अलग चैप्टर में बटी हुई है, और दूसरा इट इज इन अ सब्जेक्टिव फॉर्म, तो आंसर्स बनाना उसमें से मुश्किल हो जाता है, याद रखना मुश्किल हो जाता है. ओके, एंड स्टिल इट इज योर मेन रेफरेंस बुक, बट इट इज नॉट द ओनली बुक दैट यू हैव टू स्टडी. इट इज योर मेन रेफरेंस बुक. ठीक है, तो दैट इज इट. इसके अलावा आपको कौन सी बुक लेनी पड़ेगी? देयर इज अ बुक कॉल्ड एमटीजी फिंगरप्रिंट्स. दिस इज अ कंपाइलेशन ऑफ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ ऑल चैप्टर्स. तीनों सब्जेक्ट में मिलती है, मैं अभी बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ. सो एमटीजी फिंगरप्रिंट्स, ये कुछ 600 से 800 में बुक मिलती है, इतनी मोटी होती है. एंड उसमें 11th और 12th के सब चैप्टर्स, 40 चैप्टर्स बॉटनी एंड zoology के बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. नॉट ओनली दैट, उसमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन भी बुक में पीछे दिया होता है इमीडिएटली आफ्टर द चैप्टर. क्या, जब व्हेन वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चंस तो यू हैव द टीचर इन फ्रंट ऑफ यू, कुछ नहीं समझा तो आप पूछ सकते हो, है ना. लेकिन हमेशा टीचर आपके साथ नहीं होता. सो ये बुक में क्या फायदा है, दैट यू हैव लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशंस गिवन फॉर डिफिकल्ट टॉपिक्स, तो क्वेश्चन रिलेटेड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाता है. सो एमटीजी फिंगरप्रिंट्स इज द बेस्ट बुक फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. इसके अलावा आपको चैतन्य एकेडमी में से भी बुकलेट्स मिलेंगी और उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. और वो जो क्वेश्चंस होंगे वो मेजॉरिटी वो एलन्स के ही होते हैं. एलन्स का बुक नहीं होता, लेकिन देयर वर सम ऑथर्स अराउंड 15-20 इयर्स बैक, 2-3 ऑथर ने मिलके एक स्टैंडर्ड बुक बनाई थी नीट के लिए. उस वक्त वो एग्जाम को AIPMT बोला जाता था, तो AIPMT के लिए बनाई थी. एंड वही बुक एलन्स ने भी यूज की, वही बुक चैतन्य भी यूज करता है, वही बुक रेफरेंस बुक करता है. द ओनली प्रॉब्लम इज कि वो 15-20 साल पहले बनी थी. सो वेरी गुड बुक, नोट्स भी उसके बहुत अच्छे हैं, उसके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं. लेकिन ये जो मैंने बताया 2015 के बाद हाई कोर्ट ऑर्डर आया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछना. लेकिन अप टू 2014 जो AIPMT टेस्ट था नीट के बदले, उसमें बाहर का बहुत पूछा जाता था. तो बहुत सारी चीजें आउट ऑफ सिलेबस आपको इस बुक में मिलेगी, है ना. सो दैट इज वाई इट इज बेटर कि आप ये लेटेस्ट एडिशन एमटीजी का रखो और उसको आपका मेन एमसीक्यू का प्रैक्टिस के लिए रेफरेंस बुक समझो. ओके, सो दैट इज एमटीजी. आप जब 11th में करते हो, है ना, जब 11th स्टडी करते हो तो आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा वीक होता है, बिकॉज ये सब चैप्टर्स और ये सब टॉपिक्स बहुत सारे आपके लिए न्यू होंगे, है ना. लेकिन समवेयर अराउंड नेक्स्ट ईयर अगस्त
आपका 11th भी खत्म हो जाएगा पढ़ाई और 12th भी खत्म हो जाएगा, और अगस्त के बाद 3 महीना वापस देयर विल बी अ रिवीजन ऑफ 11th टॉपिक्स। उस वक्त जब हम 11th का पढ़ाएंगे आपको, तो अलग अलग चैप्टर्स को कोरिलेट करके भी पढ़ाएंगे, उसमें 12वीं का कुछ इन्फॉर्मेशन भी पढ़ाएंगे 11th में, बिकॉज वो कनेक्टेड है। ओके, सो व्हेन यू विल डू दैट 11th इन रिवीजन फॉर्म, ओके, दैट टाइम आपको बहुत सारी चीजें जो आप 11वीं में नहीं समझे थे वो समझ जाएगी, है ना। अभी आपको शायद रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन बाद में आप समझोगे भी उसका इम्पोर्टेंस भी, और वो खुद चीजें भी समझोगे। तो नोट्स में व्हेन यू रीड आवर नोट्स, यूजुअली टीचर्स नोट्स, तो 11वीं में पढ़ाने के वक्त भी 12वीं वाले पॉइंट्स होते हैं, बट वी में टेल यू कि अभी इस पे ध्यान मत दो, व्हेन यू विल रीड इट अगेन आफ्टर डूइंग द 12th टॉपिक्स, तब आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना है। ओके, सो इस तरह का प्रॉब्लम आपको एनसीईआरटी में आएगा कि वो सब चीजें एक्सप्लेन की नहीं होगी, और नोट्स में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ओके, सो बेसिकली 3 चीजें चाहिए आपको जूलॉजी के लिए। वन इज योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, वो पढ़ना तो पड़ेगा एक ही बार, फिर हमारी नोट्स जो मैं नोट्स आपको दूंगा, और तीसरा है एमडीजी फिंगरप्रिंट्स। इसके अलावा मैं एवरी सेशन के बाद आपको असाइनमेंट दूंगा, आई विल गिव यू सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टू आंसर। इससे फायदा ये होगा कि आपको कंपलसरी वो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा उसी दिन। आज आपको कुछ सिखाया है और सेम डे आप पढ़ लोगे, तो आप 1.5 घंटे का मटेरियल 30 to 45 मिनट्स में खत्म कर सकते हो, बिकॉज आपके दिमाग में फ्रेश है। और मैं आपको नोट्स भेजूंगा, आपको नोट्स ही मेनली तो पढ़नी है, लेकिन अगर आप 2-4 दिन के बाद पढ़ोगे या 1 महीने के बाद पढ़ोगे, तो वही चीज आपको 2 घंटे लगेंगे पढ़ने को। ओके, सो आई विल बी गिविंग यू असाइनमेंट्स, शॉर्ट असाइनमेंट्स, आप पढ़ते पढ़ते उसके आंसर्स लिख पाओगे ऑब्जेक्टिव। If you do this much, there is enough. There is no need to buy lot of different books. Okay, now for those students who are not very good in English, और उनका बेस थोड़ा वीक है, 9th 10th में अच्छी पढ़ाई नहीं की है, तो आपको कुछ गाइड लेनी पड़ेगी। गाइड, ओके, ये गाइड कौन सी है? वन इज कॉल्ड फुल मार्क्स, ये बुक का नाम है फुल मार्क्स, एंड अदर इज टारगेट। टारगेट तो सबने सुना होगा। ये दोनों एनसीईआरटी की गाइड्स है, एनसीईआरटी के जो बोर्ड होती है ना, सीबीएसई बोर्ड, बोर्ड की एग्जाम, उसके लिए गाइड होते हैं। अभी आपका सिलेबस भी एनसीईआरटी है ना, लेकिन कभी भी टॉपिक को समझने के लिए आपको यू शुड आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस, तब आपको पता चलेगा हाँ मुझे समझाए कि नहीं, है ना। सो गाइड्स क्या करती है, आपको एक तो पॉइंट वाइज शॉर्ट में सब्जेक्ट समझाती है, टॉपिक हर एक चैप्टर में होता है। उसके बाद आपको छोटे छोटे वो टॉपिक को क्वेश्चंस में ब्रेक करके आपको छोटे छोटे 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन में आपको टॉपिक पूछते हैं, और साथ में उसके आंसर्स भी देते हैं। तो कभी कभी बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स ऐसे पढ़ के नहीं समझते, लेकिन उसको ब्रेक डाउन करके आप क्वेश्चंस के रूप में और आंसर के रूप में पढ़ो, तब आपको पूरा कनेक्शन मिलता है, एंड दैट इज व्हाट अ गाइड डज। एग्जैक्टली सेम थिंग वी डू इन आवर लेक्चर ऑल्सो, सो वी आर ऑल्सो योर गाइड्स, है ना। तो गाइड्स बनाने वाले भी सीनियर टीचर्स होते हैं, एंड दे डू लॉट ऑफ वर्क फॉर यू टू मेक योर सब्जेक्ट इजी। तो ये दो में से एक गाइड, एंड आइडियली आई विल रिकमेंड फुल मार्क्स। ये एनसीईआरटी आप गाइड लोगे तो चैप्टर समझने में बहुत आसान पड़ जाएगा, है ना। सो दैट इज वन बुक विच विल हेल्प यू। इसके अलावा और कुछ नहीं लेना है। सो एनसीईआरटी, माय नोट्स, एमडीजी फिंगरप्रिंट्स, एंड ये फुल मार्क्स। देन व्हाट अबाउट योर बोर्ड बुक, एसएससी की बोर्ड बुक। ओके, तो अगर अगेन 2015 से एंड स्पेशली 201 में तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया था दैट ऑल स्टेट्स should have their textbooks, board textbooks, exactly made on the lines of NCERT. मतलब एनसीईआरटी का एक स्टैंडर्ड बोर्ड अपना बनाना है और वो बोर्ड के हिसाब से ही सब लोग बनाएंगे अपनी टेक्स्ट बुक। तो आप देखोगे कि चैप्टर्स भी सेम है, अभी टेक्स्ट बुक उसका कंटेंट भी सेम है। आपकी बोर्ड की टेक्स्ट बुक 95% इज सेम एज एनसीईआरटी, और ये 2 साल से डेफिनेटली, उसके पहले थोड़ी अलग थी। सो यू डोंट हैव टू रीड योर बोर्ड टेक्स्ट बुक, उसकी कोई जरूरत नहीं है।
आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट और नोट्स पढ़ोगे तो मटेरियल, कंटेंट, टॉपिक्स, क्वेश्चन सब आपको नोट्स में से आपके बोर्ड के लिए भी मिल जाएंगे. तो यू डू नॉट हैव टू डू सेपरेट स्टडी फॉर योर बोर्ड. ठीक है. अभी पीसीबी को छोड़ के जैसे आपका इंग्लिश है, हिंदी है, उसके लिए आपको लेना है तो आप आपके सब्जेक्ट टीचर्स को पूछ सकते हो. बट पीसीबी के लिए यूजुअली आपको नहीं करना पड़ेगा. और डेफिनेटली फॉर माय सब्जेक्ट जूलॉजी तो 100% आपको बोर्ड का टेक्स्ट लेने की जरूरत नहीं है. टाइम भी नहीं मिलेगा पढ़ने का और जरूरत भी नहीं है. ओके, सो दैट इज अबाउट द बुक्स. एंड पायल एंड अथर्व, आई थिंक आप मुझे आपका नंबर भेजो. सो हम लोग वो ग्रुप बनाएंगे एंड we'll get on with our work. ठीक है. Anybody has any questions? हाँ बोलो. दिग्विजय शिर्के, either you have to speak or you have to write your message. दिग्विजय शिर्के. नो सर, ठीक है, कोई बात नहीं. फाइन. सो वी एंड फॉर टुडे. कल वापस मिलेंगे 3 बजे. ओके. सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे फिलहाल मैं आपको सिखाऊंगा. एंड थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे रजत सर करेंगे. हो सकता है बाद में हमारा रिवर्स हो जाएगा. ओके. So see you all. Have a nice time. Enjoy yourself. Take care. Bye bye.